اس لیے کہ میں اپنے خاندان میں آیا ہوں، وہاں پر بھی خاندان ہے اور یہاں پر بھی آپ سب جو خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب خدا کے خاندان میں سے ہیں۔ اس لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جب ہم پنجاب میں آتے ہیں اور خدا کے خاندان کو دیکھتے ہیں، خدا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو دل شادمان ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، قلبی اور ذہنی اطمینان ملتا ہے۔ خداوند کے حضور یہ شکر گزاری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے مقدس کلام کو سنیں، میں آج اگر یہاں پر کھڑا ہوں تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے خدا کی ایک بڑی مہربانی مجھ پر ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور وہ مہربانی یہ ہے کہ میری شادی کے تقریباً 3 مہینے بعد میں ایک خودکش حملے کے اندر بچ گیا تھا۔ اس لیے میں آج یہاں پر کھڑا ہوں اور یہ خدا کے منصوبے کے تحت تھا۔ ہیلیلویا۔ میں نے اس وقت سے یہ جانا کہ میں اگر اس میں سے بچا ہوں تو اس کے پیچھے خدا کی مرضی ہے، خدا کا بھید ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ بھی اپنے بچائے جانے کے مقصد کو سمجھیے کہ میں اور آپ کس مقصد کے تحت بچائے گئے ہیں، نکالے گئے ہیں۔ زندگی کے اندر کئی طرح کے حالات آتے ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ ایک آزمائش میری زندگی کے اندر اور آئی، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ شادی کے بعد ہمارے پاس بڑے سال ہر سال تک اولاد جیسی نعمت نہیں تھی، برکت نہیں تھی، اور آزمائش یہ آئی کہ فیصلہ ہوا کہ آپ کی شادی کر دیں گے۔ میں نے کہا جی میرے لیے صرف ایک ہی ہے، اور وہ جو آپ نے مجھے بیاہ کر لا دی ہے، جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، میرے لیے وہی ہے۔ مجھے خدا اولاد نہ بھی دے تو میں اپنے خدا پر خوش ہوں، میں اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ یہ میری زندگی کی ایک بڑی آزمائش تھی، اور خدا کا شکر کہ میں نے فیصلہ لیا کہ میرا خداوند ضرور ہی مجھے اولاد جیسی برکت دے گا، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، خدا نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازا۔ زندگی کے اندر کئی طرح کی آزمائشیں آ جاتی ہیں، لیکن بہنوں اور بھائیوں، خداوند کی حضوری کے اندر قائم رہیے۔ ایک آیت میرے ساتھ پڑھیں، ایک گواہی آپ کو اور اس کے بعد سناتا ہوں۔ یعقوب رسول کا خط، اس کا 1 باب اور 12ویں آیت کو ہم کلام مقدس میں سے سنیں گے۔ یعقوب کا عام خط، اس کا 12واں باب، اس کا 1 باب اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب وہ مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ خدا کا کلام پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر جو لفظ ہے سنسریٹیریا، یونانی کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے سنٹینتھن ہونا، جس کا مطلب ہے بڑھ جانا، گروتھ کرنا۔ خداوند کے مقدس کلام کے اندر لکھا ہے مبارک وہ شخص ہے، وہ سنٹینتھن ہوتا ہے، وہ گروتھ کرتا ہے، وہ بڑھتا ہے، جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ ہماری لائف کے اندر بھی
آپ सबों की लाइफ के अंदर भी कई तरह की आजमाइशें हैं। कई दफा अज़दवाज के अंदर आजमाइश आ जाती है, और एक बड़ा अलमिया रहा है कि हमारे जो न्यू जनरेशन है, जब उनकी शादियां होती हैं, ना तो टीच किया जाता है बेटी को और ना ही टीच किया जाता है बेटे को कि भाई अज़दवाज क्या है, शादी क्या है। हमारे माशरे के अंदर, और ये अलमिया चर्च का भी रहा है कि चर्चेस के अंदर भी ऐसी तालीमात नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं और न्यू कपल्स आजमाइश का सामना करते हैं। सो बहनों और भाइयों, अगर हमारे पास खुदावंद का कलाम है तो फिर इसमें से सीखिए कि शादी क्या है, अज़दवाज क्या है। मैंने शादी के बाद मसीह की मोहब्बत को जाना कि यस्सु की और कलीसिया की मोहब्बत क्या है। पहले नहीं जानता था कि दुल्हे का दिल दुल्हन में है और दुल्हन का ध्यान अपने दुल्हे में है। वो उसको देखती है और वो उसको देखता है। एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं और एक दूसरे की मानते हैं। अगर कोई दुख मुसीबत आ जाए तो खुदावंद के हुजूर झुकते हैं और आजमाइश के अंदर कायम रहने के लिए खुदावंद के हुजूर से कुव्वत मांगते हैं कि ऐ खुदा मुझे हिकमत दे, मुझे दनाई दे, मुझे फहम दे, ताकि मैं तेरे हुजूर जिंदगी गुजार सकूं। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। आजमाइशें आ जाती हैं। कई दफा नौजवानों की जिंदगियों के अंदर भी कई तरह की आजमाइशें, वो फैसला नहीं कर पाते। जिंदगी है ना, एक बेटा है, जिंदगी गुजार रहा है। इसमें कोई मैं नई बात नहीं करने लगा हूं कि ये पादरी साहब नवी गल, उसकी जिंदगी में आजमाइश आ गई है किसी लड़की के सबब से, बंदा परेशान है। एक लड़की की जिंदगी में आजमाइश आ गई है किसी लड़के के सबब से। और भी आजमाइशें हैं, कई दफा कई तरह की आजमाइशें जिंदगी के अंदर आ जाती हैं। लेकिन इन आजमाइशों में से निकलने के लिए आपको खुदावंद के हुजूर झुकना होगा, आपको खुदावंद के हुजूर ठहरना होगा, ताकि आप खुदावंद के हुजूर जिंदगी गुजार सके। तो मेरी जिंदगी के अंदर जो आजमाइश थी औलाद की, हमने खुदा की हुजूरी के अंदर बड़े साल तक वेट किया और आखिरकार खुदा ने हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजा। आज बेटे के बाद हम पूरे पंजाब के अंदर आए और हमने जिन जिन चर्चेस के अंदर गए, हमने जाकर खुदावंद के नाम को जलाल दिया और गवाही सुनाई कि हम वही हैं जो पहले आपके पास आया करते थे और हमारे पास औलाद नहीं थी, लेकिन बिलीव ये था, ईमान ये था कि खुदा हमें जरूर औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। आज खुदा ने हमें 2 बेटियां और 1 बेटे से नवाजा है और ये बेटा हमारे साथ आया है। इसलिए हम सारी कलीसिया के अंदर, सारे रिलेटिव के अंदर आकर हमने ये गवाही दी है कि हमारा खुदावंद कभी अकेला नहीं छोड़ता है, बल्कि वो अपने लोगों को औलाद जैसी नेमत से नवाजता है। हालेलुया। कई दफा लोग परेशान हो जाते हैं, डिसहार्ड हो जाते हैं कि जी इसकी दूसरी शादी कर दे। चले एक फैसला कर लिया, दूसरी शादी हो गई है, पहली बीवी से औलाद नहीं है, अगर दूसरी से भी ना हो, या फिर शादी सिर्फ बच्चों के लिए होती है। एक दफा लोगों का तो ज़हन यही है कि जी शादी करें, आगे नस्ल पैदा हो। कई दफा दूसरी बीवी से भी नहीं होती है, तीसरी से भी नहीं होती है। सो बहनों और भाइयों, खुदावंद के हुजूर इंतजार कीजिए, मौका दीजिए,
खुदावंद के हुजूर कहिए कि ऐ खुदा, यही मेरा साथी है जो आपने मुझे दे दिया है, जो मेरे निकाह के अंदर है। इसी से खुदा तू मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। आज घरानों के अंदर आजमाइशें हैं। एक दफा सास ससुर की तरफ से बहू को टार्चर किया जाता है, बच्चे नहीं हो रहे, और कई मर्दों को तो ये कहते सुना कि जी ये तो जो बच्चे नहीं होंगे। अरे भाई, अगर तेरा ही कोई मेडिकल मसला है तो फिर क्या करे? सोचने की बात है ना। तो कई दफा टार्चर क्या किया जाता है जी, औरत को ही किया जाता है। बहनों और भाइयों, आजमाइश के अंदर कायम रहिए। लिखा है क्योंकि जब वो मकबूल ठहरा आजमाइश में, जब वो पूरा उतरेगा, जब वो मकबूल हो जाएगा खुदावंद की हुजूरी में, तो लिखा है जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। एक आयत मेरे साथ पढ़िए। एक अक्सर हम बात करते हैं, जब भी कोई दुख आता है ना हमारी जिंदगी के अंदर, तो हमें ना एक रेफरेंस, एक हवाला याद होता है। अय्यूब की हम एग्जाम्पल देते हैं। किसी घर के अंदर कोई दुख आ गया है, कोई बुजुर्ग रहलत फरमा गया है, कोई बेटी बेटा, कोई अजीज रिश्तेदार, तो फिर वहां पर कहा जाता है खुदा आपको अय्यूब जैसा सब्र दे। यही कहा जाता है ना। लेकिन बहनों और भाइयों, खुदावंद के हुजूर अगर हम अय्यूब की बात करते हैं तो फिर अय्यूब के बारे में क्या लिखा है, मेरे साथ पढ़िए। याकूब का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत। 11वीं आयत में लिखा है, देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही है, और खुदावंद की तरफ से जो उसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। देखो सब्र करने वालों को हम क्या कहते हैं जी? मुबारक हैं वो जो क्या करते हैं? सब्र करते हैं। एक दफा हमारी जिंदगी के अंदर ना सब्र नहीं होता है। असी कहने खुदावंद बस ना दुआ की ते बस अगले दिन ही जरा ना काम हो जाना चाहिए। अरे भाइयों, कई दफा हमें दुआओं का जवाब लेने के लिए इंतजार करना पड़ता है, खुदावंद की हुजूरी में ठहरना पड़ता है। कई लोगों ने साल हर साल तक अपनी दुआओं का जवाब पाने के लिए इंतजार किया। हमारी जिंदगी के अंदर कई दफा इंतजार नहीं होता है। दुआ करने के बाद इंतजार कीजिए। यही बात तो यीशु ने सिखाई थी कि जो कुछ तुम दुआ में ईमान से मांगते हो वो तुम्हें मिल गया और मिल जाएगा। दोनों बातें हैं, ये आपकी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। मिल गया और मिल जाएगा। तो कई दफा हम कहते हैं नहीं खुदावंद, और फिर कई दफा हम डिसाइड हो जाते हैं कि जी बड़ियां दुआवां कीतियां हैं, जवाब नहीं मिल रहा। जी इन्ने साल तो दुआवां कर रहे हैं। अरे भाइयों बहनों नौजवानों, दुआओं के बाद जो नस्ल खुदा आपको देगा ना, फिर वो लाखों में एक ही होगा और खुदा का सूरमा होगा। हालेलुया। एग्जाम्पल थोड़ी सी दे देता हूं, मेरा ये मौजू नहीं है। हन्ना को खुदा ने बड़ी दुआओं के बाद सैमुएल दिया, और सैमुएल के बारे में लिखा है कि उसने खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने ना दिया। खुदा का सूरमा पैदा हुआ। और बड़े नाम हैं। यूहन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं, जिक्रिया और अलिशबा के बारे में कि खुदा ने उन्हें यूहन्ना दिया बड़ी दुआओं के बाद, और एक ही सूरमा था, खुदा का नबी था। जब हम खुदावंद के हुजूर दुआ मांगने के बाद इंतजार करते हैं, ठहर जाते हैं, तो फिर खुदावंद अपने लोगों की जो दुआओं का जवाब देता है, खुदा फिर सूरमे ही पैदा करता है।
کئی دفعہ ہماری زندگی کے اندر انتظار نہیں ہوتا. خداوند کے مقدس کلام کے اندر لکھا ہے 11ویں آیت میں، دیکھو صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں. تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی ہے، اور خداوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا، جس سے خداوند کا بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے. جو خداوند کا ترس اور رحم ہے، وہ جب آپ صبر کرتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو اس سے خدا کا صبر اور ترس ظاہر ہوتا ہے. میری زندگی کے اندر ایک اور ایسا واقعہ آیا، یہ بھی میری زندگی کی بڑی آزمائش تھی، کہ میرا اپینڈکس کا آپریٹ ہوا اور میں آرمی ہاسپٹل کے اندر تھا. جب میرا آپریٹ ہوا تو یہ ڈاکٹرز کے لیے پہلا کیس تھا کہ اپینڈکس کے آپریٹ جو ہے وہ مریض کا ایسے بھی جو ہے وہ مسئلہ بن سکتا ہے. آپریٹ کرنے کے بعد جو ہی وہ مجھے انہوں نے وارڈ کے اندر شفٹ کیا، تو ہوا یہ کہ مجھے کھانسی شروع ہوئی اور ساتھ ہی بلیڈنگ. نہ ہی وہ کھانسی رک رہی ہے اور نہ ہی وہ منہ سے بلیڈنگ رک رہی ہے، جیسے اتھو لگ جاتا ہے، یہ جاری ہے. مجھے فوراً انہوں نے ICU میں لے کر چلے گئے، شفٹ کیا. اور اتنی جو ہے وہ ٹینشن، جس آفیسر نے میرا یہ کیا تھا، آپریٹ کیا تھا، وہ بہت پریشان، اور اس نے فوراً سے سارے ڈاکٹرز کو کال کی. تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے کوئی 12-13 ڈاکٹرز کھڑے ہیں، اور کھانسی لگاتار، بلیڈنگ لگاتار، نہ بات ہو رہی ہے نہ سانس آ رہی ہے، یہ جاری ہے. اور میں خداوند کے حضور ایک دعا کر رہا تھا کہ خداوند کیسی آزمائش ہے، اور مجھے اے خداوند اس مشکل سے رہائی دے، مجھے فتح دے. روح کے اندر یہ دعا چل رہی تھی، بات نہیں ہو رہی تھی. اور میں ایک جیسے بندہ چلا جاتا ہے روح میں، یعنی کوما میں جس کو کہتے ہیں، کوما تو چلے جی بڑا لفظ ٹھیک نہیں ہے، بڑا لمبا ہے، لیکن میں ایسے تھا کہ سویا ہوا تھا اور روح میں کچھ دیکھ رہا تھا. کیا ہوتا ہے کہ جب میں یہ دعا کر رہا ہوں تو میرے بدن سے ایک قوت نکلی ہے، ایسے کوئی تاثیر ٹائپ، جس نے یہ مجھے دکھ دینے کی کوشش کی، اور وہ ایسے چل کر تیزی سے باہر چلی گئی دروازے کی. جو ہی وہ دروازے سے باہر گئی ہے، مجھے ہوش آئی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھا اس کو. جو ہی مجھے ہوش آئی اور میں اپنی آنکھیں میں نے کھولی اور اپنے سامنے ان ڈاکٹرز کو دیکھا، اور ایک دم میں اٹھ کر بیٹھ گیا. جو ہی میں اٹھا ہوں، کہنے لگے بھائی کیا ہو گیا تھا؟ میں کہا سر بس جڑا ہویا سی بس ختم ہو گیا، ان میں ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے بھائی تھینک یو جی، گاڈ بلیس یو، کہ واقعی آپ ٹھیک ہیں. یار تو تے سانو بھائی پریشان ہی کر چھڑیا یہ. یار میں کیا ہوا تھا؟ میں کہا سر بس آپ کے سامنے ہی تھا جو بھی ہوا، لیکن ابھی کہتے ابھی ٹھیک. میں کہا بالکل ٹھیک. میں کہا مجھے آپ اسی وارڈ میں شفٹ کر دیں، پھر دیکھ لے یار. میں نے کہا سر بالکل ٹھیک، اور مجھے انہوں نے اسی ٹائم پہ اسی وارڈ میں شفٹ کیا. یہ میری زندگی کے اندر تیسری بڑی آزمائش تھی. میں خداوند کا شکر گزار ہوں، بلیو کرنے سے، ایمان رکھنے سے، صبر کرنے سے، انتظار کرنے سے، ایمان رکھنے سے خدا نے مجھے بڑی فتح بخشی. بہنوں اور بھائیوں، ہماری زندگی کے اندر کئی طرح کی آزمائشیں آ جاتی ہیں، لیکن کئی دفعہ ہم ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں. ایک حوالہ میرے ساتھ پڑھیے ایوب کی کتاب میں سے. ایوب کی کتاب کا پہلا باب ہے. ہم کئی دفعہ ایوب کی بڑی بات کرتے ہیں کہ خداوند ایوب جیسا صبر دے. بے شک خدا دیتا بھی ہے، لیکن ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے ایوب سے. لکھا ہے پہلے باب کی 20ویں آیت میں، ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیراہن چاک کیا اور سر منڈایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، میں اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا
पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा, और कहा नंगा ही मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक। अगली आयत बड़ी खास है, सुनिए। इन सब बातों में, किन बातों में? इन सब बातों में क्या बातें हुई थी? बातें ये थी कि अमीर तरीन शख्स उस की सरजमीन में, इसके बहुत सारे नौकर चाकर, इसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, इसका सब कुछ जाता रहा। 7 बेटे 3 बेटियां सब मर गए। मालो दौलत जो इसके पास था सब चला गया, सब कुछ फना हो गया। इस सब के बावजूद खुदा का बंदा अय्यूब जमीन पर बैठा है, खुदावंद के हुजूर में उठा और जाकर हमाम पर इसने अपना सर मुंडवाया। हिम्मत देखिए, सब्र देखिए इसका। वरना साडे तो कोई थोड़ा जा दुख आ जाए ना ते लोग बैंड पांदे ने, वाह वेला करदे ने, वाह वेला भी इंज दा, खुदाया तेनू मेरा ही घर लभ्या सी, मैं ही रह गया सा, मेरे नाल ही इंज क्यों खुदावंद? मैं तेनू कहा भी सी कि ना करी इंज, लेकिन फिर भी तू इंज कीता। हमारी इस तरह की लड़ाइयां खुदा के साथ, ऐसे शिकवे। अय्यूब का सब कुछ, जिसके 7 बेटे मर जाएं, जिसकी 3 बेटियां भी ना रहें, जिसकी फैक्ट्रियां तबाह हो जाएं, जिसका मालो जान सब कुछ फना हो जाए, सिर्फ एक बीवी बच गई है, सब कुछ मर मिटा है। अय्यूब का सब्र देखिए जी। जमीन से उठा है, गया है, सर मुंडवाया है और खुदावंद को सिजदा किया है। हालेलुया। ऐसी हालत में भी, ऐसी परेशानी में भी खुदावंद के हुजूर सिजदा कर रहा है। और लिखा है इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर भेजा काम का ऐब लगाया कि खुदा मेरा ही घर लभ्या सी, मैं ही रह गया से। खुदाया किन्ने लोग ने, अरे कोई भेजा, कोई काम, कोई बात, कोई ऐसा शिकवा नहीं, किसी बात में कोई ऐब नहीं, बल्कि इसके ऑपोजिट शुक्रगुजारी। खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, उसी का नाम मुबारक है। अरे बहनों और भाइयों, हम बड़ी बात करते हैं अय्यूब, खुदा सब्र भी दे देता है, लेकिन अपने आप को भी पेश किया। आजमाइश आ गई है तो रुकिए, ठहर जाइए, सब्र कीजिए, वक्त का इंतजार कीजिए। कई दफा हमारे अंदर तो सब्र ही नहीं होता है, बस असी कहने खुदावंद बस इत्थे हुणे ही कर दे बस। बहन और भाइयों, इंतजार करना सीखिए, सब्र करना सीखिए। जब आप आजमाइश में पूरे उतरेंगे, आप मुबारक होंगे। इसकी बीवी इससे कहती है, आप भी अब तक खुदावंद का ही तो नाम लेता रहेगा। उसके मुंह पर उसकी फीर कर और मर जा, छोड़ दे उसका नाम लेना, उसने तेरा कुछ नहीं छोड़ा है। लेकिन बहनों और भाइयों, अय्यूब लिखा है इन बातों में कायम रहा। 10वीं आयत में लिखा है, पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता ना की। अरे कोई ऐसा लफ्ज निकला ही नहीं है। एक बेटा मर जाए ना ते मैं कहना भाईजान समझ लग जाओ, ये 7 ते 3 बेटियां सारे ही मर गए, लेकिन फिर भी इसके अंदर सब्र है। इसके सब्र का, इसने जो किया है उसका जो इसको सिला मिला है, वो जरा मेरे साथ पढ़िए जी, ताकि ये भी साथ बात पढ़ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। 42वां बाब अय्यूब की किताब का 12वीं आयत में लिखा है, यूं खुदावन ने अय्यूब के आखिरी अय्याम में इब्तिदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी और उसके पास 14,000 भेड़े
भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट और 3,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। आप जब इसकी पढ़ते हैं पहले बाब को, उसकी तीसरी आयत को, तो लिखा है इसके पास 7,000 भेड़ें थी, लेकिन लास्ट में आखिरी वक्त में कितनी हो गई? डबल। इंतजार करेंगे तो फिर बरकत का इंतजार कीजिए, डबल बरकत मिल जाए। एक दफा हमारी जिंदगी में सब्र ही नहीं होता जी, कहने नहीं खुदावंद उम्मीद है, इसने सब्र किया है। आप पढ़ के देख लें, पहले इसके पास जब तबाह हुई है, मरी हैं ये, इसके पास 7,000 भेड़े, और जब आखिरी वक्त में हम पढ़ रहे हैं इसके पास खुदा ने जो उसको बरकत दी है, डबल करके दी है, इसके पास 14,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंट, तो फिर इसके बाद 6,000 ऊंट हैं, 500 जोड़ी बैल, खुदा ने 1,000 बैल दिए, और 500 गधियां, और खुदा ने 1,000 गधियां इसको दी है। सारी बरकत डबल है जी। जब इंसान सब्र करता है, इंतजार करता है, तो फिर वो बरकत का इंतजार करे। मैं अभी अपने छोटा बेटा, ये 7 मंथ का ही था, 6-7 मंथ का, तो इसके अंदर मेरी बरकत, हमारी ब्लेसिंग ट्रांसफर होगी, और हमने इसको उस वक्त से ही एज ए खादम ही देखा कि इसके अंदर ये हालेलुया के भी नारे लगाता है, या ढोलक जाकर बजाना शुरू कर देता है। स्लोमी हारमोनियम बजा रही होती है, जाके हारमोनियम जो है ना हाथ मारता है कि मैनू बजा दे। तो ये चीजें बचपन ही से ट्रांसफर हो जाती हैं, हमारे तुखम में से इनके अंदर जाती है, क्योंकि हम खुदा के खादिम हैं और हमने दुआओं से ये लिया है। अभी देखें कि एक बच्चे के लिए जब आप 16-17 साल से दुआएं कर रहे हैं, जब खुदा वो बच्चा देगा तो वो कैसा बच्चा होगा। इतनी दुआओं के बाद सुबह नूर भाइयों, इंतजार करना सीखिए, खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपको बढ़ाएगा। आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। ये खुदावन के कलाम की बातें सच हैं, लेकिन कई दफा हम इंतजार नहीं करते हैं। इसके बाद एक और वाकया मुझे याद आ रहा है। पैदाइश की किताब मेरे साथ निकालिए। पैदाइश की किताब, आजमाइशें हमारी जिंदगी के अंदर बड़ा कब आती हैं। कई दफा खुदावन की तरफ से खुदा हमें आजमाता है, हमें मजबूत करने के लिए, हमें स्ट्रेंथन करने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए, हमारा ईमान बढ़ाने के लिए। अब्राहम की एग्जाम्पल जब हम यहां पर सुनने लगे हैं, 15वें बाब के अंदर खुदा ने अब्राहम के साथ वादा किया कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा। लेकिन इसकी नजर जमीन पर लग गई, मालो जान पर। ये देखता है अपने मालो जान को, चीजों को, और खुदा से कहता है, खुदावन तूने मुझे औलाद नहीं दी, और मेरे घर का मुख्तार अली अजर, दमिश्की अली अजर है। तो खुदा ने फिर इससे बात की कि मैं तुझे जरूर बरकत दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा। जब इसकी नजर जमीन पर लगी हुई थी, अपनी मालो दौलत पर, तो खुदा ने अब्राहम से कलाम किया, अब्राहम जरा अपनी नजर, अपना ध्यान जमीन पर से हटा दे और ऊपर आसमान की तरफ देख। कई दफा हम अपनी सोचों में, अपने इन खेमों में गुम हो जाते हैं। हमारा राबता, हमारी सोच महदूद हो जाती है, और हम जमीन पर देखना शुरू कर देते हैं जो हमारे सामने होता है। हम लोगों की बातें सुन सुनकर और भी डिसहार्ड हो जाते हैं। अरे डॉक्टर ने कहा कि तेरे औलाद होनी नहीं। इंज जी कई दफा कई लोगों को कह छड़े, तेरी ये बीमारी जानी कोई नहीं है, ला इलाज है। कई दफा कह देंगे तू मां बन ही नहीं सकती। कई बहनों जो हमारे पास आई, खादमों के पास आती हैं, भाइयां सुनते हैं,
डॉक्टर्स ने ये कह दिया है जी, लेकिन मौजज़ा ये होता है जो इंसानों की सोचों से बालातर बात हो जाती है। वो मौजज़ा होता है जो इंसान नहीं कर सकता और खुदा कर देता है। मौजज़ा फिर ये होता है कि खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है और खुदा उसे मौजूद बना देता है। हालेलुया। लेकिन जब इंसानों की नजर जमीन के ऊपर लग जाती है, अब्राहम की नजर मालो दौलत पर लगी, खुदा ने कहा जरा आसमान की तरफ देख, अगर तू सितारों को गिन सकता है। उसने कहा लातदाद है बाप, ऐ खुदा ये बहुत ज्यादा है। बाप ने कहा तेरी औलाद भी ऐसी ही होगी। खुदा ने अब्राहम को ठहराए हुए वक्त पर बेटा इसहाक दे दिया। इसहाक के नाम का मतलब है खुशी। खुशी इसको दे दीजिए, हंसा दिया खुदा ने इसको। खुदा के मुकद्दस कलाम के अंदर 22वें बाब के अंदर लिखा है, जब बाप ने खुदा ने इसे आजमाया, 15वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा। खुदावंद फरमाता है चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, मैं दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है। अरे खुदा कसम नहीं खाता है। उसने बनी इसराइल को शरीयत के अंदर मना किया कि तुम कसम ना खाना, ना आसमान की, ना जमीन की, ना किसी और चीज की। और खुदा यहां पर अब्राहम के साथ बात करते हुए खुदावंद कसम खाता है, लिखा है मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर के किनारे की रेत की मानित कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। हम जब खुदा की बात सुनते हैं, जब हम फॉलो करते हैं, जब हम मान लेते हैं, तो फिर बरकतें, सरफराजियां आपके कदम चूमती हैं। बहन और भाइयों, भरोसा कीजिए, ईमान रखिए। अगर कोई आजमाइश आपकी जिंदगी के अंदर आ गई है तो खुदावंद आपको निकालने पर कादिर है। आप लोगों का ईमान बढ़ाइए। कई दफा आजमाइशों में हम गिर जाते हैं और हम दूसरों के लिए कई दफा तमाशा बन जाते हैं, लेकिन खुदावंद हमें मजबूत करना चाहता है, हमें स्ट्रेंथन करना चाहता है, हमें बढ़ाना चाहता है, ताकि हमारी गवाही के वसीला से और बहुत सारे लोग बरकत पाएं और उनका ईमान बढ़ जाए। कई दफा लोग गवाही सुन के उनका ईमान बढ़ जाता है, और हम जब ऐसे कपल्स के साथ मिलते हैं जिनके पास औलाद नहीं होती, तो हम उनको कहते हैं भाई हम भी उनमें से ही हैं, हमारी भी औलाद नहीं थी, लेकिन हमने बिलीव किया खुदा की जात पर। खादमों ने हमारे लिए दुआएं की, हम खुदाबंद के हुजूर झुके रहे, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी है कि बाप ने हम पर फजल किया, रहम किया और इस आजमाइश में हमें कायम रखा, और खुदा ने इस आजमाइश में से हमें निकाला। मैं भी अपनी लाइफ के अंदर कई दफा ज्यादा तो नहीं, लेकिन बड़े सालों के बाद कई दफा थोड़ा सा डिसहार्ड होता था ऐसे इंसान, लेकिन मुझे ये तकबीयत इस बात से मिलती थी कि जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ, जिस खुदा के हुजूर मैं झुकता हूँ, जिसकी मैं खिदमत करता हूँ, वो मुझे जरूर ही औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। और खुदावन की शुक्रगुजारी कि खुदा ने ठहराए हुए वक्त पर जो खुदा ने ठहरा दिया था, हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजा। और आज जितने भी चर्चेस के अंदर हम गए हैं, अपने मनादी के साथ अपनी गवाही भी लोगों को सुनाई, और कई कपल्स हमारे पास आए, कईयों का ईमान बढ़ा और आकर हमसे दुआ करवाते थे, और कईयों के साथ स्लोमी ने काउंसलिंग की और उनका ईमान बढ़ाया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिलीव कीजिए, ईमान का कलाम बोल दीजिए। आजमाइश आ गई है, खुदा आपको आजमाइश में कायम रखेगा। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के अंदर
جو بات ہم نے پڑھی ہے، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ اگر آپ آزمائش میں بھٹک جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، کوئی اور فیصلہ لے لیتے ہیں، تو آپ جتنی بھی آپ نے دعائیں کی، آپ کی وفاداریاں ساری کی ساری دفن ہو جائیں گی۔ بہن اور بھائیوں، خداوند کے حضور اگر آپ کی لائف کے اندر، یہ صرف اولاد کی ہے، اور بھی کئی آزمائشیں ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر آ جاتی ہیں، جیسے میں نے شادی کے بارے میں، ازدواج کی میں نے بات کی ہے کہ کئی دفعہ یہ المیہ ہے، لمحہ فکریہ ہے خاندانوں کے اندر کہ تربیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور آزمائشیں، اور میں نے آتے ہوئے کئی ایسے کپلز کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ ایک ہماری اپنی بیٹی سٹاف کالج سے ہمارے ساتھ، انہوں نے کلیسیا میں بڑا ٹائم گزارا، ان کی شادی کو تقریباً 2.5 سال ہونے لگے، ان کی بھی ایسی ناراضگی ہو گئی اور فیصلہ یہاں تک جا پہنچا کہ علیحدگی ہو جائے گی۔ لیکن وہ بیٹی کہتی کہ ایک دن مجھے سوچ آئی کہ میں جس خدا کی عبادت کرتی ہوں، میرے پاسبان نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ کبھی یہ ایسی حرکت نہیں کرنی یا ایسا فیصلہ نہیں لینا۔ کہتی ہیں کہ میں خداوند کے حضور بیٹھی تھی، خداوند نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں اپنے گھر میں جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا تیرا شوہر وہ لین آوے، انہوں نے کہا بے شک وہ نہیں لین آ رہا، میں نے یہ بات سیکھی ہے، اگر وہ نہیں لینے آ رہا ہے کوئی بات نہیں، میں جاتی ہوں، میں نے اپنا گھر بسانا ہے۔ اور خدا کا شکر اس بات کے لیے، اس بیٹی کو خدا نے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور ابھی وہ دونوں میاں بیوی خداوند کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے اس رویے سے، اس کے چلے جانے کے سبب سے، حالانکہ وہ لڑکا دنیاوی تھا، چلے جانے کے سبب سے اس نے کونسلنگ جاری رکھی، اور خدا کا شکر کہ اس بیٹے کی زندگی میں کام ہوا، اس نے توبہ کی، بپتسمہ لیا، اور ابھی وہ دونوں خدمت کے لیے جاتے ہیں۔ اور میں سن کر جب اس بیٹی نے گواہی سنائی، میں نے بہت شکر گزاری خداوند کی کہ عتیقہ آپ نے بڑا فیصلہ لیا ہے۔ کہتی ہے بھائی یہ دنیاوی تھا، اس کے پیچھے میں نے دن رات دعائیں کی، آنسو بہائے ہیں، اور تقریباً 2.5 سال کی پرے کے بعد خدا نے میری دعا کا جواب دیا ہے۔ ہماری تو علیحدگی تک، وکیل بھی کر لیا تھا، علیحدگی تک بات پہنچ گئی ہوئی تھی۔ ایک ہماری لائف کے اندر بھی ایسا واقعہ گزرا ہے، میری بڑی بہن کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ وکیل ہو گیا، کوئی 8-9 سال وہ ہمارے گھر میں رہی، مسائل پیدا ہو گئے، سب کچھ، لیکن خداوند کے حضور ہماری جو ہم جھکے رہے، دعا کے اندر روزے رکھے، خدا نے دعاؤں کا جواب دیا، اور ہماری بہن دوبارہ اپنے گھر میں گئی۔ خداوند کی شکر گزاری، آج اس کے بچے بھی جوان ہو گئے ہیں، تقریباً جو ان کا بڑا بیٹا ہے وہ میرے 21-22 سال کا ہے۔ بہن اور بھائیوں، کوئی مشکل نہیں ہے، آزمائش آ گئی ہے، خداوند کی طرف دھیان لگائیں، اس کو دیکھیں، خداوند آزمائش کے اندر آپ کو نکالنے کی راہ پیدا کر دے گا، آپ کی فتح ہوگی، خداوند کی فتح ہوگی، اور ابلیس اور اس کی کفروں کی شکست ہوگی، کیونکہ ابلیس یہ چاہتا ہے، ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے ازدواج برباد ہو، خدا کے خاندانوں پر دھبے لگے، لیکن آپ کو یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ آپ خدا کے حضور جھکے رہیں۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں، خداوند کے حضور اپنا دھیان خداوند کی طرف لگا لیں۔ ہمارا خداوند، اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی آزمائش آ گئی ہے، میری بہن، میری بیٹی، خداوند آپ کو بڑی فتح بخشے گا۔